Good morning, student. Welcome in your bio class. So today's we will taking last videos of this ecosystem, biodiversity and conservation, chapter 15, and this is the uh, last lesson of your syllabus. After that we will take a revision. So yesterday class we have discussed biodiversity pattern, how to biodiversity is distributed, importance of species diversity in the ecosystem. Now today's topic is what will be happenings and what will be incidents if loss of biodiversity. So there are what is loss of biodiversity and what is the effects of loss of biodiversity we will discuss today's. Basically loss of biodiversity, there are so many reasons. First is overpopulation, urbanization and industrialization. Secondly, the colonization of the tropical Pacific island by humans has led to the extinctions of more than 2000 species of native field. 15,500 species are facing the threat of extinctions worldwide. This is some data which called about loss of biodiversity. IUNC Red List. IUNC, it is organizations especially in Red List 2004 documents extinctions of 784 species, include 338 vertebrates, 559 invertebrates, 487 plants in last 15 years. इतने जो species हैं extinct हो चुकी हैं. At present 31% of gymnosperms, 32% of amphibians, 12% of bird species and 23% of mammals face the threat of extinctions. Some recently extinct species are dodos, quagga, Africa, thylacine, Australia, stellar cow, sea cow, Russia, and 3 tiger species, Bali, Java, and Caspians. In last 20 years, 27 species are disappeared. This is all species are endangered due to loss of biodiversity. There has been 5 episodes of mass extinctions of species and 6 extinctions is going on. मतलब लगभग 5 एपिसोड ऐसे हो चुके हैं, मीन्स 5 एरा बीत चुका है जब बहुत सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई हैं और अभी भी स्पीशीज़ एक्सटिंक्शंस चल रहा है. ठीक है, बट इट इज़ 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन अर्लियर वंस. और अब स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होने का जो परसेंटेज है 100 से 1000 टाइम्स फास्टर है. Loss of biodiversity in region may leads to decreases in plants production, less resistance to environment disturbances such as drought, increased variability in ecosystem process like plants productivity, water use, pest and disease cycle. In this way you will just understood what is the effects of loss of biodiversity in your ecosystem. If biodiversity will be lost, so there are some factors on which biodiversity loss are responsible. First, when overpopulation we have already discussed, urbanization, third one is industrialization, and the loss of biodiversity's reason may be affect decrease in plant production. Plant productions कम होने लगता है. Less resistance to environment disturbances. एनवायरमेंट डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो उनसे ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसको रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं. ठीक है. थर्ड वन क्या होता है, इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम प्रोसेस. इकोसिस्टम वेरिएबल होने लगता है एंड यू जस्ट रीड इट. इफ इकोसिस्टम आर वेरिएबल देन स्पीशीज विल बी सडनली और इट विल बी ग्रेजुअली लॉस. ज़्यादा यदि वेरिएबिलिटी इकोसिस्टम पे होगी तो स्पीशीज लॉस होने लगेगी. अब और सेकंड है what is the cause which is responsible biodiversity losses. It is first one is there are 4 major causes of biodiversity loss. 4 reasons
बायोडाइवर्सिटी लॉस के हैं, इट इज कॉल्ड एज ईवल क्वार्टेड, ईविल क्वार्टेड, जो बायोडाइवर्सिटी खत्म कर रहा है, हैबिटेट खत्म कर रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशंस ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट का धीरे धीरे टूटना, ठीक है। हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशंस होना मतलब उसके पार्ट्स हो जाना, ठीक है। पहले एक बहुत बड़ा जंगल है, अब वो उधर पे कुछ कंस्ट्रक्शंस हो गए तो जंगल का लॉस हो गया, फॉरेस्ट का लॉस हो गया, यू विल से इट इज फ्रेगमेंटेशंस, लॉस ऑफ हैबिटेट लॉस, ठीक है। अब ये किसके रेफरेंस पर आप लोगे हैबिटेट लॉस? Here one examples are given there. In tropical rainforest initially covered, starting में ये 14% अर्थ का लैंड कवर किए हुआ था। कौन सा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इनिशियली कवर्ड 40% ऑफ लैंड सरफेस ऑफ अर्थ, बट नाउ दिस टाइम इट इज ओनली 6% ऑफ लैंड इज कवर। तो कितना इसका फ्रेगमेंटेशन हो गया, लॉस कितना हो गया? बहुत ज़्यादा, 8% के आसपास लॉस हो गया, 14% से अब 6% रहा है। दिस इज लॉस ऑफ हैबिटेट और फ्रेगमेंटेशंस। क्लियर? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट कॉल्ड लंग्स ऑफ द प्लैनेट, अमेजॉन का जो एरिया है वो पूरा अर्थ प्लैनेट का लंग्स कहलाता है। इट बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर कल्टिवेशंस ऑफ सोयाबीन। तो क्या हुआ कि इसको धीरे धीरे सोयाबीन जो आप लोग खाते हो ना, सोयाबीन के कल्टीवेशंस के लिए इसको डेवलप कर दिया गया, जिससे कि जो प्लांट्स थे, सोयाबीन का प्लांट्स तो बेसिकली क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया को उस एरिया में इम्प्रूव कर देता है, ठीक है ना। लेकिन रेन फॉरेस्ट में ऐसे प्लांट्स थे जो कंटिन्यूअस फोटोसिंथेसिस करते थे, तो इसलिए वो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा देते थे। जब उनका फ्रेगमेंटेशंस हो गया, लॉस ऑफ हैबिटेट हो गया फॉर एनी अदर पर्पस, कोई भी पर्पस हो सकता है, तो उससे उनका जो लैंड एरिया था जो उन्होंने कवर किया था वो 6% रह गया, जहाँ वो 14% था वहाँ 6% रह गया। और वो प्लैनेट के जो लंग्स कहे जाने वाले जो कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं वो धीरे धीरे लॉस हो गया, तो हैबिटेट डिक्लाइन हो गया। और हैबिटेट जब डिक्लाइन हो गया तो वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में माइग्रेशंस वाला नेचर आ गया। जब उनको वो एरिया ही सूट नहीं करेगा तो वो माइग्रेट कर जाएंगे वहाँ से, ठीक है ना। तो हैबिटेट लॉस यदि होता है तो स्पीशीज़ वहाँ लॉस पक्का होती है। क्यों? स्पीशीज़ माइग्रेट कर जाएगी, कुछ स्पीशीज़ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। लॉस ऑफ, आप देख रहे हो जैसे मंकी में फॉरेस्ट कट रहे हैं, कितने एनिमल का एक्सीडेंट हो जाता है, फॉरेस्ट एनिमल का, है ना। हाथी निकल रहे हैं या वो विलेज एरिया पे, रेजिडेंशियल एरिया पे आ रहे हैं तो कितना लॉस कर रहे हैं। ये क्यों ऐसा? इट इज़ ड्यू टू हैबिटेट लॉस। हम लोग अपने उत्तराखंड में तो बहुत ज़्यादा देखते हैं ना हैबिटेट लॉस के कॉन्सिक्वेंसेज, तो ये हैबिटेट लॉस है। सेकेंड, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। थर्ड वन इज एलियन स्पीशीज इन्वेंशंस। एलियन स्पीशीज इन्वेंशंस मतलब कुछ ऐसी आउटसाइडर्स स्पीशीज होती हैं जो आ जाती हैं और लोकल स्पीशीज को बहुत हार्म करती हैं। तो इसके लिए 3 एग्जाम्पल्स आर गिवन देयर। इन्वेजिव वीड्स लाइक पार्थिनियम, कैरेट ग्रास, ठीक है, लैंटिना जो अभी हर जगह दिखाई देती है, लैंटिना, इकाइनोरिया, वाटर हाइकिन आर इन्वेजन्स द लोकल एरिया वेजिटेशंस। लोकल एरिया के वेजिटेशन को नहीं अटैक कर दिया उसके ऊपर और उसकी एग्जिस्टेंस को धीरे धीरे कम कर दिया, ठीक है। और इस तरीके से वो हमारी नेटिव स्पीशीज़ को हार्म करते हैं। तो दिस इज़ कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि कोई एलियंस स्पीशीज़ का इन्विजन्स हो जाए। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन बीइंग अपने लॉस के, अपने ग्रेडीनेस के कारण बहुत सारी चीज़ों का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। जितना गवर्नमेंट डिसाइड करती है उससे ज़्यादा वो कर देता है, या गवर्नमेंट भी एक अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो ये ओवर हो जाता है, जितना नहीं होना चाहिए, ठीक है। को एक्सटिंक्शंस क्या होता है? व्हेन अ स्पीशीज़ बिकम एक्सटिंक्ट, मान लो कोई स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही है, लेसर उसमें हो रही है, धीरे धीरे वो खत्म हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है। द प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएट विद, तो जो प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज उस एक्सटिंक्ट स्पीशीज से एसोसिएट है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? ऑब्लिगेटरी मैनर इट्स बिकम अ एक्सटिंक्ट, वो भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज को एक्सटिंक्टिंग।
मतलब एक स्पीशीज़ तो हो ही रही है, जो उसके ऊपर डिपेंड दूसरी स्पीशीज़ है वो भी उसके साथ हो रही है, ठीक है। सेकंड दिया है, एक इसमें एग्जांपल्स दिया को एक्सटिंक्शंस का, आप लोग एग्जांपल्स ज़रूर रीड करो। जैसे हैबिटेट लॉस है तो क्या है, किस एग्जांपल्स के थ्रू आपने इसको दिया है। एलियंस स्पीशीज़ से बायोडाइवर्सिटी कैसे लॉस हो रही है आपको देना पड़ेगा कि 3 प्लांट्स हैं, वाटर हाइकैंथ हो गया, ठीक है ना, लैंटिना हो गया, ठीक है। एंड थर्ड वन इज़ कौन सा एक और क्लियर किया था मैंने, फर्स्ट वन इज पार्थिनियम, सेकेंड वन इज लैंटिना और थर्ड वन इज हाइकन। These are 3 foreign species which invasions the local species and they kill them also. उसको किल भी कर दिया। जहाँ पर वाटर हाइकैंथ होता है वहाँ कोई दूसरा प्लांट्स होते ही नहीं, जहाँ पार्थिनियम होता है वहाँ पे कोई दूसरी वेजिटेशन डेवलप ही नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो ये इसके एक लाइव एग्जांपल्स हैं। अब रीजंस फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, अब हमको बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करनी है, ठीक है। द रीजंस फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, देयर आर फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट इज नैरोली यूटेरियंस आर्गूमेंट्स, ह्यूमन बीइंग derive direct economic benefits from nature like food, firewood, fiber, constructions material, industrial products, resin, gum, dye, tannins, the medicinal important products. First है हमारे बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस हैं जो हमको प्लांट से मिलते हैं, जिससे हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप करते हैं। दैट्स अ रीज़न बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज इम्पोर्टेंट। सेकेंड दिया है ब्रॉडली यूटेराइन आर्गूमेंट्स, इसमें यह है कि कुछ ऐसे मतलब यूटिलिटी है जो कि हमको इनडायरेक्टली डायरेक्टली बेनिफिटेड है, ठीक है। द डिफरेंट इकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड अस, बहुत सारे प्लांट्स हमको इकोलॉजिकल सर्विसेज इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, लाइक दैट जैसे आप इकोलॉजी में एक पिरामिड्स फॉर्म करते हो तो एक प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, फिर कंज्यूमर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। अब ये ट्रॉपिकल लेवल हैं, एक ट्रॉपिकल लेवल आप डिस्टर्ब करते हो तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट? तो ब्रॉडली ये इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है मतलब हम डिस्टर्ब हो रहा है, ह्यूमन रेस पूरा का पूरा डिसअपियर हो रहा है। तो ये दिस इज ब्रॉडली यूटेरियन आर्गूमेंट्स, ठीक है। ह्यूमन बीइंग ये सोचता है कि हमको इकोसिस्टम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। यदि डिस्टर्ब करेंगे तो हम सबसे पहले जाएंगे। क्लियर? एक भी स्पीशीज कोई जाती है तो इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। इथिकल रीजंस मीन्स देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रोब्स ऑन अर्थ विच आर नॉट यूजलेस, एवरीवन हैज सम intrinsic values even it is not any economic value to us. ethical reasons क्या कहता है? ethical reasons ये है कि बहुत सारे ऐसे plants जिनके हमको यूटिलिटी नहीं पता है, समझ में आया? उनके क्या यूटिलिटी है, उससे बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो हमारे लिए क्या उसकी यूटिलिटी है वी डोंट नो। थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल जो यूजलेस हैं, जिनको हम यूजलेस समझ रहे हैं क्योंकि उनका अभी हमने रिसर्च नहीं किया है, लेकिन उसके बाद भी वो एक इंट्रिंसिक वैल्यूज़ रखते हैं, उस इकोसिस्टम के लिए एक वैल्यू रखते हैं, एक स्पीशीज़ मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो जबकि वो हमारे लिए कोई इकोनॉमिक वैल्यू की नहीं है, दिस इज ड्यू टू इथिकल रीजंस। इथिकल रीजंस वो है कि हमारी मान्यताएं जैसे किसी चीज़ के लिए हैं, ठीक है ना, और जिसके बेस पर हम अपनी सराउंडिंग्स की जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, जिसके हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है बट हम उसकी वर्शिप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वर्शिप है ये इथिकल रीजंस भी है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशंस का, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जिसको हम स्केर्ड पॉइंट्स कहते हैं, मतलब उसकी हम पवित्रता के हिसाब से उसकी पूजा करते हैं, जबकि हमको उसकी वैल्यूज़, इकोनॉमिक वैल्यू हमारे लिए उसकी कुछ भी नहीं है। It is therefore our moral duty to ensure well-being of all living creature for the utilizations of future generation. और ethical values हमको ये
लर्न करती है, ये टीच करती है कि बहुत सारे एंश्योर करें हम कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग वन हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं। वी डोंट नो इट्स इकोनॉमिक वैल्यू, डायरेक्ट हमको उसका कोई भी मतलब बेनिफिट्स नहीं पता है। आफ्टर दैट आवर इथिकल वैल्यूज़ वी worship it or we kept in their environment. Unnecessary, we can't destroy any species. ठीक है, these are the ethical reasons. So there are 3 reasons for biodiversity conservation. First one is narrowly utilitarian arguments, जो थोड़े थोड़े बिल्कुल डायरेक्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली दोनों तरीके से इम्पोर्टेंट है। थर्ड वन इथिकल रीजंस। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्टिंग होल इकोसिस्टम, इसलिए हमको बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करना है। सेकंड, देयर आर 2 बेसिक अप्रोच फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसके लिए हम 2 बेसिक अप्रोचेज यूज़ करते हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए। सो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन 2 टाइप से करते हैं। फर्स्ट वन इज in tissue conservation, second one is ex tissue conservation. in tissue conservation इसमें हमने डिवाइड किया है बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, हॉट स्पॉट और प्रोटेक्टेड एरिया। एक्स टिश्यू कंजर्वेशन इज अगेन डिवाइड इन 2, फर्स्ट प्रोटेक्शंस ऑफ थ्रेटनिंग स्पीशीज और प्रोटेक्शंस ऑफ गैमेट्स। क्लियर? एक्स टिश्यू कंजर्वेशन में, इन टिश्यू कंजर्वेशन में प्रोटेक्टेड एरिया, हम एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, जस्ट लाइक बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, स्केर्ड ग्रुप्स। इसमें ये हमारे प्रोटेक्टेड एरिया जिसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करते हैं। स्केर्ड ग्रुप्स जैसे कैलाश है, कैलाश पर्वत है, हमारे लिए पवित्र है, तो हम अननेसेसरी वहाँ जाके गंदगी नहीं फैलाएंगे, उसको हम पवित्रता के हिसाब से उसकी रक्षा करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क्स गवर्नमेंट के थ्रू जो प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, उनको में भी कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि एक्सटिंक्ट कंडीशंस में हैं या इंडेंजर्स फॉर्म पर हैं, उनको हम कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज इन टिश्यू इन सिटू कंजर्वेशन, नॉट टिश्यू, इन सिटू SITU कंजर्वेशन। और एक्स सिटू कंजर्वेशंस में क्या कर रहे हैं हम लोग, जैसे थ्रेटनिंग स्पीशीज़ के लिए एक रिजर्व बना रहे हैं, उसको कंजर्व करते हैं, गैमेट्स को कंजर्व करके रख रहे हैं जो आगे जाके उनसे फिर उसको प्लांट्स को डेवलप किया जा सके। जूलॉजिकल पार्क फॉर्म कर रहे हैं, बॉटेनिकल पार्क फॉर्म कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सफारीज पार्क फॉर्म कर रहे हैं, जीन बैंक फॉर्म कर रहे हैं, सीड्स बैंक बना रहे हैं, टिश्यू कल्चर कर रहे हैं। ये एक्स टिश्यू मतलब जिसमें कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कुछ चीज़ फॉर्म करते हैं, मतलब आर्टिफिशियली। एक्स टिश्यू का, एक्स सिटू का मतलब होता है आर्टिफिशियली कंजर्वेशन, इन टिश्यू का मतलब नेचर, इन सिटू का मतलब नेचुरल फॉर्म पर। ठीक है, तो ये 2 हो गए। तो अब इन सिटू कंजर्वेशन मतलब ऑन साइट कंजर्वेशन है, इसमें बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट आता है, प्रोटेक्टेड एरिया आता है। जैसे फॉर इंडिया हैज़ 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 19 नेशनल पार्क एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये आपको डाटा कम याद रखना पड़ेगा, 1 मार्क्स क्वेश्चंस में आ सकता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश इन इंडिया। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में कौन सा एरिया लेंगे? एंडेमिक स्पीशीज आर स्पीशीज कन्फाइंड ओनली एंड लिमिटेड एरिया। जो एंडेमिक स्पीशीज़ होती है जो एक पर्टिकुलर एरिया बस पे ही डेवलप होती है, तो इंडिया में 34 हॉट स्पॉट है, सॉरी नॉट इंडिया, इन वर्ल्ड 34 हॉट स्पॉट हैं जहाँ बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा मिलती है। ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कवर लेस देन 2% ऑफ अर्थ एरिया बट हार्बर लार्जर नंबर ऑफ स्पीशीज़। अब बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट यदि लैंड वाइज उनको देखें तो 2% पूरी टोटल अर्थ लैंड का ये यूज़ कर रहे हैं, बट स्पीशीज़ इनकी जो है वो कितनी है, लगभग 30% बायोडाइवर्सिटी है। तो मतलब एक एरिया जहाँ पर डिफरेंट टाइप की बायोडाइवर्सिटी है बट वो बहुत कम एरिया कवर किए हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। ठीक है, रामसर साइट क्या होता है? रामसर साइट आर वेटलैंड्स विच आर कंसिडर्ड टू अ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस।
ठीक है। स्कैर्ड ग्रुप जो पवित्र प्लेसेस होते हैं, देयर आर फॉरेस्ट पैचेस सेट असाइड फॉर वर्शिप। ये स्कैर्ड ग्रुप्स वो हैं जो लोग वर्शिप के लिए यूज़ करते हैं। ये कुछ हिली एरिया के कुछ रीजन्स होते हैं, जैसे लाइक आप अपने यहीं पे देख लो, केदारनाथ हमको प्रोटेक्ट करना है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारा जो है ईश्वर है उसको हम मानते हैं, वो हमारे लिए एक मान्यताओं से रिलेटेड प्लेस है, लाइक दैट। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिया है स्कैर्ड ग्रुप्स के लिए खासी एंड जंतिया हिल्स इन मेघालय। मेघालय में खासी और जंतिया हिल्स हैं जो कि वहाँ की जो जाति है, ट्राइब्स, वो उन एरिया को बहुत प्यार से रखती है, बहुत उसको ध्यान दे के रखती है, ठीक है। वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, वो भी अपने एरिया को स्कैर्ड ग्रुप के तरीके से यूज़ करते हैं, मतलब कोई चीज़ खराब ना होने पाए यहाँ पर। थर्ड है अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, सरगुजा, चांदा एंड वत्सल बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। ये हो गए आपके स्कैर्ड ग्रुप्स हो गए, जो किस में आ जाएंगे स्कैर्ड ग्रुप्स वगैरह, इन सिटू कंजर्वेशंस पर। अब एक्स सिटू कंजर्वेशंस में ऑफलाइन कंजर्वेशंस इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ऑफलाइन कंजर्वेशंस में प्रोटेक्शंस ऑफ थ्रेटनिंग स्पीशीज, प्रोटेक्शंस ऑफ गैमिट्स, प्रोटेक्शंस ऑफ जो जूलॉजिकल पार्क फॉर्म करना, बॉटनिकल पार्क फॉर्म करना, जो गवर्नमेंट के अंडर ऑर्गेनाइजेशंस चलते हैं, ठीक है। ये मतलब आर्टिफिशियल है, एक्स टू आर्टिफिशियल, इन सिटू नेचुरल फॉर्म पर। क्लियर? सो कन्वेंशंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशंस ऑफ एक टाइम टू टाइम बायो कंजर्वेटिव्स के लिए जो है ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुई हैं, और टाइम टू टाइम डिफरेंट नेशंस की मीटिंग होती रहती है बायोडाइवर्सिटी के लिए, एयर पॉल्यूशन के लिए। एयर पॉल्यूशन भी कहीं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, वाटर पॉल्यूशन भी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। जितने तरीके के पॉल्यूशन है अल्टीमेटली वो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। तो उसके लिए टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, या हमारी कमेटी है, ठीक है, पूरी इंडियन नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लाइक दैट, इस तरीके के जो पूरे ऑल वर्ल्ड के लिए काम करते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी टाइम टू टाइम मीटिंग करते रहते हैं। उसमें एक मीटिंग है रियो डी जेनेरो मीटिंग, हमारी डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के थ्रू होती है, सब उसके मेंबर्स होते हैं, और ये इसमें नियर अबाउट ऑल नेशंस आर पार्टिसिपेट्स, तकरीबन 192 कंट्रीज़ आर इन्वॉल्व। और वो बेसिकली क्या करती हैं कि ये जो इसके लिए क्या रिफॉर्म करना है, क्या चेंजेस लाना है, कंट्रीज़ को क्या कंट्रीब्यूशंस देना है, दे आर डिस्कस अबाउट इट। और इसके पीछे रीजंस कहीं ना कहीं हमें अपनी अर्थ को सेव करना है, अर्थ सेव रहेगी, बायोडाइवर्सिटी सेव रहेगी। सो टुडेज वी हैव फिनिश कन्वेंशंस ऑन बायोडाइवर्सिटीज एंड अवर topics, all topics we have finished. Thank you student, have a nice day.